Hello everyone, I'm Dr. Muattar Hanif, Assistant Editor at Medical News Pakistan, and I'm so thrilled to welcome you all to this live session, Building Resilience in COVID-19 Crisis. And I'm so thrilled to welcome our speaker, Professor Dr. Muaddad Hussain Rana. He's the Chief Editor of Journal of Pakistan Psychiatric Society, Chairman The Healing Tribe Pakistan, Chair of Department of Behavioral Sciences of University of Health Sciences, Lahore. He's also the Chairman Pakistan Red Crescent Task Force for COVID-19 Crisis. Dr. Muaddad is author of 12 books and more than 61 national and international publications. He was declared the best university teacher in the field of medicine by Higher Education Commission Pakistan and is the recipient of Sitara Imtiaz from the Government of Pakistan. Professor Rana has been Dean of Faculty of Psychiatry of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Please, Dr. Muaddad, join us in the video, and hello. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुअत्तर आप? Alhamdulillah, sir. Surviving Ramzan is enjoyable. Sir, surviving and working and everything. So you're one of those rare people who are still working. But are you working Yes. from home या दफ्तर वगैरह जा रही हैं आप? No, sir, we are working from home. The lockdown situation doesn't allow us to move much except from our TV lounge to our bedrooms and to our dining rooms. अच्छा ठीक है. तो इस तरह से रोज़ों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है या कम मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है? Sir, I think being busy actually makes the whole process a lot more easier. But then obviously the lockdown and the whole situation of being in isolation has its own limitations, you know. So it was enjoyable at first, but now I think it's something that I really miss my office and my desk and everything. Because say, okay, so we would like to talk about today resilience. है ना, इस पर बात करना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सर. ये जो हमने गुफ्तगू पहले की है ना, उसकी एक तरह से कंटिन्यूटी है. आपकी शायद ज़हन में होगा कि हमने रिएक्शन और रिस्पांस की बात की थी कि अब वो वक्त तो गुजर गया कि जिसमें हम रिएक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स दिस ह्यूज क्राइसिस इन आवर लाइव्स, और हमने एडवोकेट किया है कि रिस्पांस इज़ मच बेटर, और रिस्पांस में हमारी थिंकिंग का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. और उसमें हमने बार बार जिक्र किया, ये जो मॉडल मेरे पास ब्रेन का हर वक्त मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये एक्टिव हो जाए किसी तरीके से. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है, प्रिडिक्ट करता है चीज़ों को, पोस्ट कोविड टाइम्स को किस तरह से हम एडवांटेजियस बना सकते हैं रादर देन अ ग्रेट लॉस इन आवर लाइफ. और ये एक ऐसा ज़बरदस्त हिस्सा है इंसान के पास, उसके आर्मामेंटेरियम में, कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाए तो एक्चुअली he or she in COVID-19 is going to come out through this response as a person who would say that yes, there was a crisis in my life. It was a major crisis. This crisis affected me, my family, my children, my neighbors, my workplace, my community, my city, my country, and it affected the world. But because of the way that I handled this crisis, I bounced back. And I have recovered from this adversity. And not only I have recovered, in fact, I am more adaptive and I am thriving. ये कितनी इम्पॉसिबल बातें लगती हैं जिस वक्त आप क्राइसिस के अंदर होते हैं ना, कि जहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाहें देने के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके लाले पड़े हुए हैं, इस ईद पर किसी से मिलना भी है कि नहीं मिलना इसके लाले पड़े हुए हैं, अगले वक्त का क्या होगा इसके लाले पड़े हैं. वहाँ पर ऐसी बातें करना कि जिसमें आदमी ये सोच रहा हो कि मैं I will bounce back and I will adapt to the life and its challenges even better, and adapt to such a degree that I would thrive. I would be more than what I am today as a person. ये आपको याद होगा, हमने इब्तिदाई गुफ्तगू में एक चीज़ का जिक्र किया था जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. आपके है ज़हन में ये तस्वर? PTSD की बात कर रहे थे.
PTSD, yes, sir. Yes. तो हमने कहा था कि सिर्फ PTSD नहीं होता जनाब, 10% लोगों को PTSD के अलावा PTG हो जाता है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है उनकी, they become bigger individuals, brighter individuals, and one of the words that we used in post traumatic growth was resilience. तो आजकल मोहतर आपके पास भी वक्त होगा और हमारे सुनने वालों के पास भी ज़्यादा वक्त है, और तो मैं ये बात शुरू करने से पहले कि रेजिलियंस क्या है और आप किस तरह से रेजिलियंट, आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप रेजिलियंट होके इंशाल्लाह से मुझे यकीन है कि बाहर आएंगे इस क्राइसिस से, कोविड-19 के। मैं 2 किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की, शायद अगर मैं 5 बेहतरीन किताबों की लिस्ट बनाऊं तो उनमें से 2 किताबें ये होंगी जिनका मैं, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, आपको भी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, और मेरे जो इस वक्त तशरीफ रखते हैं ऑडियंस एंड व्यूअर्स, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन किताबों को पढ़ें। ये रेजिलियंस के बारे में बेहतरीन किताबें। इनमें से पहली किताब बहुत मशहूर है और उसके ऊपर जो ऑथर थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसका नाम था द ओल्ड मैन एंड द सी। पढ़ी आपने? No, sir. किताबें पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया। वैसे इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, एंथनी क्विन उस फिल्म में है, द ओल्ड मैन एंड द सी। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक राइटर थे, तो उनको शायद आई थिंक 50 की दिहाई में, 1950 की दिहाई में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज दिस बुक द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा किताब। इसकी इसकी थीम पता क्या थी? बहुत ही कमाल की थीम थी रेजिलियंस के बारे में। थीम ये थी कि यू कैन किल अ ह्यूमन बीइंग बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के अंदर इतनी रेजिलियंस है कि वो मर तो सकता है, वो तबाह नहीं किया जा सकता। और हमारे पास हमारी हिस्ट्री में बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में भी बेशुमार एग्जाम्पल हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं पाकिस्तान आज, इसकी हजारों साल की जो हिस्ट्री है उसके अंदर बेशुमार ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय तो नहीं कोई कर सका, उनको मार दिया गया, लेकिन आज भी वो जिंदा है, मेरे और आपके ज़हनों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने एक खास कैरेक्टरिस्टिक का मुजाहरा किया था जिसको रेजिलियंस कहते हैं। एडवर्सिटी में रेजिलियंस का मुजाहरा किया था। हमारी इस्लामिक हेरिटेज में तो ऐसे बहुत ही कमाल के लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं इमाम हुसैन का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी जो फैमिली है, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया ऑफ हाउ they could be killed, they could be defeated in inverted commas in a battle, but they could not be destroyed. तो ये रेजिलियंस का सबक जो है ना, ये बहुत आसान है मेरे और आपके लिए कि क्राइसिस के अंदर कुछ लोग अगर सरवाइव कर जाएं उसको, तो वो बाउंस बैक करते हैं और वो बहुत और इंसान बन जाते हैं, ऐसे इंसान बन जाते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे सोने को जिस वक्त आप जलाते हैं, हीट करते हैं, तो वो सियाल मादा बन के ऐसी ऐसी शेप्स इख्तियार करता है कि जो हैरान कुन होती है, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट जस्ट गेट्स स्ट्रॉन्गर। आयरन को जिस वक्त आप करते जाते हैं, ट्रीट करते जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टील बनता जाता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता उस हीट से। सो ये जो एक कैफियत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम आज जिक्र करना चाहते हैं। इसमें बुनियादी सी बात ये है कि पहली शर्त ये है रेजिलिएंट होने की कि आपके अंदर एक फेथ हो, और यहां मैं फेथ इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, इन अ पर्टिकुलर फिलॉसफी, इन अ पर्टिकुलर अप्रोच नहीं कहना चाह रहा। faith, irrespective of which faith, it does not matter which faith,
ठीक है, बट टू हैव फेथ, और उसकी क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस फेथ के? दैट ह्यूमन स्पिरिट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग in this world. Human spirit is the strongest thing. Human spirit is guarded by a higher being, and human spirit can be defeated in a certain situation but cannot be destroyed. ये जो एक अपने बारे में कॉन्फिडेंस है, ये इंसान को रिजिलियंट बनाता है. तो अगर कहीं कभी हमें जिंदगी में फेथ की जरूरत थी तो वो ये टाइम है जिस वक्त आपका फेथ आपके अंदर सबसे बड़ा सपोर्टर है इस सारी सिचुएशन को डील करने में, कोविड-19 के क्राइसिस को. इसको मजबूती से पकड़ रखिएगा. वो जो हायर बीइंग की प्रोटेक्शन की फीलिंग है उससे भरे रहिएगा अंदर से, और फिर देखिएगा क्या होता है. पहला सवाल जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका, इससे पहले कि मैं अपनी राय आपको दूं. आपके ख्याल में क्या चीज डिटरमिन करेगी कि इंसान इतना स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट हो जाए? क्या चीज डिसाइड करेगी? क्या हो उसके इर्द गिर्द या उसके अंदर जिससे वो रिजिलियंट हो जाएगा? आपका क्या ख्याल? I think it's more about the people around you can actually uplift you in certain ways, and the confidence inside you that actually matters. So there's one factor outside, and then there's one factor inside, and the both of the fusion can actually make it work. That's what I think. मेरे में आपने इतना जबरदस्त जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि बाकी लेक्चर आप दीजिए. परफेक्ट आंसर. कि दो चीजें हैं जो कि रेजिलिएंट बनाती हैं. एक इनर फेथ जिसका हमने अभी जिक्र किया था, और एक ये चीज जिसका आपने जिक्र किया है कि देयर इज समथिंग आउटसाइड, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट यू हैव. ये जो हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते हैं ना, ये कितने मीनिंगफुल है. ये लफ्ज मेरे ज़हन में रखिएगा आप, और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ये अल्फाज जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये अल्फाज कहीं लिखने के हैं, ये कहीं याद रखने के हैं, ये दोहराने के हैं. कि ऐसे रिश्ते जो कि मीनिंगफुल हों, पर्पस हो उनका आपकी जिंदगी में, यूजलेस नहीं, मीनिंगफुल, पर्पसफुल, सपोर्टिव रिश्ते जो सपोर्टिव हो. वो रिश्ते नहीं जो आपको घुन की तरह चाट रहे हैं अंदर से, जो आपको पैरासिटिक रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके ऊपर पैरासाइट बन के आपके ऊपर जिंदा है. आपको उनसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा और वो आपको नॉ कर रहे हैं, हर वक्त खा रहे हैं. ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, 3 मैंने अभी तक बताए: मीनिंगफुल, सपोर्टिव एंड ट्रस्टिंग. ट्रस्ट करने वाले, नहीं ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं असल में आपका मतलब कुछ और है, नहीं आप तो हाथ असल में थोड़ी धोखा रहे हैं, आप अभी आपने कपड़े बदले तो नहीं है असल में. छोटी छोटी चीजों के अंदर एक मिसट्रस्ट क्रिएट करके रखना रिश्तों के अंदर. तो ऐसा रिश्ता जिसके अंदर मिसट्रस्ट है और आप हर वक्त उसके ऊपर शक शकूक में मुब्तला है, ये रिश्ता आपको रेजिलिएंट नहीं बना सकता. लविंग, मोहब्बत के रिश्ते. तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तों में मीनिंगफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्टिव हैं, ट्रस्टिंग हैं और लविंग, मोहब्बत देते हैं. मोहब्बत इसलिए नहीं देते हैं कि उनको आपसे कोई फायदा पहुंचने वाला है, अनकंडीशनली मोहब्बत करते हैं आपसे. तो ये जो रिश्ते हैं ना, ये इंसान को रेजिलिएंट बनाते हैं. तो मुझे ये तय करना है कि मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मेरे वालिद हैं, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वो लोग हैं जिनको जो मुझे बहुत अजीज हैं, जो जिनके बगैर मैं अपनी एग्जिस्टेंस तस्वर नहीं कर सकता कि मुमकिन है उनके बगैर. इन रिश्तों के लिए मुझे ये तय करना है कि क्या मैं उनके लिए मीनिंगफुल हूँ
मैं उनके लिए सपोर्टिव हूँ? जब उनकी जिंदगी में कुछ होता है तो क्या वो मेरा ख्याल करते हैं कि हाँ उससे बात करते हैं, उससे कुछ ना कुछ असिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं? क्या मैं वो प्रोवाइडर हूँ उस असिस्टेंस का, सपोर्टिव हूँ? क्या वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और क्या मैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ? और मेरी उनके साथ जो मोहब्बत है वो दुनियावी सी तो नहीं है। ये जो कैफियत है ना एक फैमिली में, एक दोस्ती में, एक कम्युनिटी में, of having relationships that have these characteristics, these 4 pillars of relationships जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है। पता है ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट अमारत वो होती है जिसके कम से कम 4 पिलर्स हो। ये 4 पिलर्स पर खड़ा हुआ रिश्ता, मीनिंगफुलनेस, सपोर्टिवनेस, ट्रस्ट एंड लव, ये 4 चीजें अगर होंगी तो यकीन कीजिए कि मुझे रिजिलियंट होने में आसानी होगी। और अगर ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा पाया तो आपके अंदर रेजिलियंस बढ़ेगी, अंदर से फेथ, बाहर से ये वाले रिश्ते। अगर ये हो तो जनाब फिर रेजिलियंस होगी और रेजिलियंस हमें निकालेगी कोविड-19 में से एक बड़ा मुआशरा बनाकर, एक अजीम तर मुआशरा बनाकर, ग्रेटर ह्यूमंस बनाकर देन व्हाट वी वर इन जनवरी 2020। सो मुझे उम्मीद है कि हम इस फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अगर हम उसमें चले जाते हैं और हमें ये लगता है। अच्छा, अब जनाब ज़रा ये तय कर लें कि कैसे पता लगेगा, क्या क्या करना शुरू करें आप ऑन अ डेली बेसिस जिससे कि आपको ये पता लगे कि आप रेजिलिएंट हो रहे हैं या नहीं। व्हाट एक्टिविटीज ऑन अ डेली बेसिस you need to do, what characteristics you need to develop within yourself by which you would feel resilient and you would become resilient। तो 2 तो प्री कंडीशंस थी और अब मैं आपके सामने 3 कंडीशंस ऐसी रखने लगा हूं कि जो करने की, जो की जा सकती हैं, प्रैक्टिस की जा सकती हैं, तीनों बहुत आसानी के साथ। तो जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था, मैं आपसे पूछ के शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आपने इतने जबरदस्त जवाब दिए हैं मुझे पहले कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपको क्या लगता है क्या किया करूं मैं रोज कि जिससे मेरे अंदर रेजिलियंस बढ़ सकती है? Sir, I'll talk about myself more. जी जी I think I do those work and those things that I enjoy more. And sometimes I actually participate and encourage myself into those activities that that give me satisfaction and peace and everything, whether it's praying or whether it's reading a book or those stuffs. So that's, I think I think it's self time, sir. आप खुद को टाइम जो अगर आप देते हैं, ओके, बड़ी सही बात की आपने कि एक तो जो बुनियादी सी चीज ये है कि आप रेजिलिएंट तभी होंगे कि अगर आप होंगे तो होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी सेल्फ केयर और अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टार्ट विद योर सेल्फ। वो जो कहते हैं ना फ्लाइट के दौरान के जिस हवा का दबाव कम होगा तो आपके सामने मास्क गिर पड़ेगा तो सबसे पहले अपने मुंह पे रखिएगा, उसके बाद किसी और को असिस्ट कीजिएगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है जो कि जिंदगी में भी शामिल करने की है कि मैं हूँगा तो फिर मैं दूसरों को लुक आफ्टर कर सकूंगा। तो सेल्फ केयर, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना ख्याल जिस वक्त आप रख रहे हैं तो हर वक्त कुर्बानी की बकरी की कैफियत में न रहेंगे, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर और उस पर और उस पर। तो ये जो कैफियत है ये आप भाई कुर्बान नहीं होंगे, आप जिंदा रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप अपने कोविड-19 से बचाव का ख्याल रखेंगे, आप अपनी हिफाजत करेंगे। और जो आप हिफाजत कर रहे होंगे वो असल में अपनी हिफाजत तो होगी लेकिन वो इस ख्याल से कर रहे होंगे आप कि मेरे ऊपर कुछ लोग और मुझसे प्यार करते हैं और मेरे ऊपर वो मेरे साथ उनका एक रिश्ता कायम है। और तो ये पहली चीज जो आपने कही बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक और बात जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि रेजिलियंस बढ़ाती है, और आप इसके बारे में फिर चाहें तो मुझसे सवाल कीजिएगा कि क्या वाकई आप भी ऐसा ही महसूस करती हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत शुरू में हमने एक बात की थी कि हमारे पास न्यूरोबायोलॉजिकल एपरेटस नहीं है क्राइसिस को डील करने का। ये एपरेटस हमें एक्चुअली हासिल करना पड़ता है, नेचुरली नहीं है।
ये हासिल करना पड़ता है। ये नेचर में बिखरा हुआ है, फिर हमें वहां से वापस लाकर असेंबल करना पड़ता है अपने अंदर, छोटे छोटे पीसेस में बिखरा हुआ है, इकट्ठा करना पड़ता है अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल ऑपरेटर, वो इकट्ठा करके फिर हम क्राइसिस के साथ डील करें। तो ये जो बिखरा हुआ है ना, ये कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है? तो ये सबसे ज्यादा तो इन दो चीजों में बिखरा हुआ है जिनका आपने भी जिक्र किया। फेथ, तो फेथ ले आए तो आप समझेंगे न्यूरोबायोलॉजिकल ऑपरेटर और ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गया, और जिस साथ आपने मुझे रिश्ते ऐसे प्रोवाइड कर दिए जिनके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मेरी ये असेंबली लाइन अब तैयार होगी। अब इस असेंबली लाइन के साथ मैं 3 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें से रिजिलियंस मैन्युफैक्चर होके बाहर निकलेगी, मेरे अंदर रिजिलियंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसमें एक्चुअली सबसे पहली चीज ग्रेटिट्यूड की, शुक्र की। लॉट ऑफ साइंटिफिक डेटा जिसका मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस दैट पीपल who in adversity, who in crisis like the COVID-19 crisis, get into a state of gratitude rather than panic. पैनिक की जो स्टेट थी वो रिएक्शन में, और जब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं तो वो इस तरह से बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये जो क्राइसिस आया है ना, ये एक्चुअली मुझे तबाह करने के लिए नहीं आया, ये मेरी जिंदगी को और ज्यादा मानी खेज बनाने के लिए आया। तो अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे हैं वो मुसीबतों के दौरान भी शुक्राने की कैफियत में चले जाते हैं। ये मैंने और आपने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा है, बहुत सारी दास्तानों में भी सुना है, और ये हमारी आम बिलीफ में भी है कि जो बड़े लोग थे वो उस वक्त शुक्राने की कैफियत में चले गए जब उनके ऊपर कोई इम्तिहान आया। तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरली इंसान जो है वो खौफजदा हो जाता है, वो अंदेशे में चला जाता है, एक्चुअली उसको वो अल्लाह से नाराज हो जाता है, वो खुदा को कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तू खामोश बैठा हुआ है, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तू खामोश है, तू देख रहा है ये सारा कुछ। तो वो मुस्कुरा के कहता है कि नहीं, मैं खामोश नहीं हूं, सिर्फ तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही। तो कहता है अच्छा क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? तो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, तुमसे बात कर सकता हूं अगर तुम अपने दिल को, और यहाँ दिल से मुराद ये नहीं है, दिल से मुराद यहाँ है ये जो दिल है ना, जहाँ से वो आपसे बात कर सकता है या करता है, मेरे ईमान के मुताबिक करता है आपसे, वो तब बात करता है जब आपका दिल, जो एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम के तौर पर हमारे ब्रेन में मौजूद है, उसमें से कुछ चीजों की सफाई हो जाती है। और हमने अपनी पिछली टॉक में रूहानी वजू का जिक्र किया था कि वो जो दिल साफ हो जाता है इस चीज से कि जिसमें कि हमने उन इमोशंस का जिक्र किया था, नेगेटिव इमोशंस का जिक्र किया था, जिनका तज़किरा आप दोबारा से करना तो नहीं बनता, लेकिन बहरहाल मैं किए देता हूँ कि वो वाली जो कैफियतें हैं जिनके अंदर आप नफरत के जज्बों में, पैरानोया में और डिस्ट्रेस में और लोगों के बारे में अजीबोगरीब आपके जज्बात हैं, उनको कंडेम कर रहे हैं, आप उनके बारे में बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, वेंजियंस है आपके अंदर, तो इस कैफियत से एक दिल के ऊपर मोहर सी लगती है, और उससे फिर वो जो आवाज़ है अंदर की महबूब की, वो आपको नहीं सुनाई देती। तो कब सुनाई देती है? जिस वक्त आप ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं, तो धुलने शुरू हो जाते हैं वो सारे जज्बात जो है ना, वो धुलने लगते हैं आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड में। और ये बात तो आपको लग रहा है ना कि मैं कोई बड़ी मजहबी सी और रूहानी सी बात कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली they have compared levels of certain neurotransmitters in the brain when a person is in a state of gratitude and compared the same levels when he is in a state of panic. When he is in a negative state of condemnation, तो उस वक्त ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये नीचे चले गए और उस वक्त बहुत बढ़ गए जिस वक्त के वो स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में। ये कौन से neurotransmitters? So it's a neurobiological reality that I'm talking about, a scientific reality that I'm talking about. What's that? Endorphins, nerve growth factor,
ऑक्सीटोसिन। ये फैक्टर्स जो है ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये ऐसे हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को पॉजिटिवली एनहांस करते हैं, न्यूरॉन्स को आर्बराइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। सो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा यूनिसन वाली हो जाती है। यूं समझ लें कि ब्रेन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिंक्रोनाइज तरीके से काम करना शुरू कर देता है जिस वक्त वो सजदे की कैफियत में, शुक्राने की कैफियत में होता है। सो ब्रेन which is organized and is working like a symphony is a brain rich in endorphins, in nerve growth factor, and oxytocin. That is when it gets connected with each other and is more cohesive in its responses. ये वाला ब्रेन है जो ज्यादा इमेजिनेटिव होता है, ये वाला ज्यादा क्रिएटिव होता है। ऐसे सॉल्यूशंस इसके दिमाग में आते हैं जो कि आपको कोविड-19 में से निकालेंगे। पोस्ट कोविड-19 टाइम्स के जमाने में आपको क्या अपने बिजनेसेस को कैसे चेंज करना है, ये आपके अंदर पैदा होगा इन अ स्टेट ऑफ शुक्र, इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान के दिमाग में नेचुरली ये कैफियत नहीं आती। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना फ्यूचर के बारे में, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में खौफ की वजह से डिस्ट्रक्शन और नेगेटिविटी आती है। इसको डिजाइन करना पड़ता है। ये वो नमाज है जो कायम करनी पड़ती है ताकि आप हर वक्त एक शुक्र की कैफियत में रहें। ये इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट्स लाइक ट्राइंग टू रीवायर योर ब्रेन एंड सो दैट दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन डू इट। लेकिन अगर फेथ होगा और अगर वो रिश्ते हमारे इर्द गिर्द होंगे तो यकीन करिए ग्रेटिट्यूड में जाना ज़्यादा आसान होगा। ये एक दूसरे के साथ मिल के करने की जरूरत है। हम घरों में है ना, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को साथ रखिए, दोस्तों को साथ मिला के कहें चलो यार शुक्र अदा करते हैं, तो वो सारे चैलेंज करेंगे आपकी इस बात को कि यहाँ पर घर में खाने को नहीं है, क्राइसिस हुआ है, ईद आने वाली है, पैसे नहीं है, और आप हमें कह रहे हैं शुक्र करने की। तो टू ब्रिंग देम दिस concept of faith and this concept of resilience would help them understand why you want them to be in a state of gratitude. So it's to be in a state of gratitude as an individual, but also as a family, as a community, as an organization, to be in a state of gratitude in these very difficult times. मुश्किल लेकिन बहुत ही ज़रूरी कैफियत में आप चले जाएंगे अगर ऐसा कर लिया, इस कैफियत में चले गए तो। दूसरी चीज जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ एज अ नीड टू बिल्ड रेजिलियंस, दैट इज एम्पैथी। आपने ये लफ्ज तो सुन रखा होगा मतलब? बिल्कुल सर, empathy to have a feeling for the other person, care for the other person, yes. ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं आजकल रमजान चल रहा है ना, तो उसकी मिसाल लेते हैं। अच्छा, अब हम अगर आमतौर पर सोचें कि भाई ये रोजा रखवाने की अल्लाह को हमें क्या जरूरत थी, तो हमें जो जवाब मिलता है ना वो ये होता है कि ताकि हमें भूख का एहसास हो जाए। तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो रोजा है ना, ये सिर्फ आपके भूख के एहसास के लिए नहीं है, ये दूसरों की भूख के एहसास का भी इदराक है जो सिखाता है। आप कैसा लगता है एक वक्त का खाना ना मिलना, ये कैसा लगता है? 12 से 14 से 15 से 18 घंटे तक पानी ना पीना, पानी ना मिलना कैसा लगता है? सो दूरी उन चीजों से जो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिनको सारी दुनिया समझती है कि उनके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, जब उससे किसी को दूरी होती है तो कैसा महसूस होता है। सो ये जो रोजा है ये असल में जिक्र है उसका जो कि भूखा है, उसका जिक्र आपके अंदर पैदा करता है रोजा। तो एम्पैथी की एक्सरसाइज है रमजान, एम्पैथी की एक्सरसाइज है रोजा, जिक्र है ये उनका जिनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं है जो आपके पास है। तो वो जो लोग हैं, वो जो फैमिलीज हैं जो इकट्ठे बैठकर इस बारे में जिक्र करती हैं कि जो जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं, ये उन लोगों के पास जिनके पास नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी है। कोविड-19 में वो लोग
जो कि दिहाड़ीदार हैं और उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, उनकी जिंदगी कैसी है? वो लोग जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, उनकी जिंदगी कैसी है? कोविड-19 के अंदर वो फैमिली जो सब क्वारंटाइन में चली गई हैं, उनका क्यों एक आदमी तो चला गया है अस्पताल में और बाकी सारे क्वारंटाइन में, उनकी जिंदगी कैसी है, किस तरह का लगता है? और वो बंदा जो कि एक ऐसे कमरे में बंद है जहाँ कोई खिड़की है ना रोशनदान है, और वो अगले 2 हफ्ते तक वहां बंद रहेगा, वो कैसा लगता है? ये बच्चों को बिठा के और आपस में इसकी बातचीत करना, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं, सोल्यूशन ढूंढना, ये पैदा करेगी आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग लीडिंग टू एन एक्शन, और आपके बच्चों के अंदर चीज बनाएगी। और इससे क्या होगा? एक आपका बॉन्ड बनेगा आपस में भी और इर्द गिर्द के लोगों के साथ, एम्पैथिक बॉन्ड बने। ये जो एम्पैथिक एक्सरसाइज है ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड दोज अराउंड अस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प देम, बट इट विल इंक्रीज योर रेजिलियंस। तो वो लोग जो कि ग्रेटिट्यूड की कैफियत में रहते हैं और एम्पैथिक होते हैं, उनके अंदर रेजिलियंस ज्यादा हो जाता है। तो ख्याल रखा आपने दूसरे की भूख का, उसकी भूख ठीक हो गई, आपकी रेजिलियंस बढ़ गई। ख्याल रखा कि वो ईद कैसे करेगा और उसकी ईद को आपने बेहतर बना दिया, उसकी ईद बेहतर हो गई, आपकी रेजिलियंस बढ़ गई। तो ये कमाल का एक फिनोमेना है एम्पैथी का, जो कि फायदा एपरेंटली दिखा रहा है एक और शख्स के अंदर, यानी कि आप लुक आफ्टर कर रहे हैं दूसरे के जहन को, दूसरे के जिस्म को, उसकी जरूरतों का एहसास करके, लेकिन इन द ट्रेड ऑफ आप एनहांस हो रहे हैं स्पिरिचुअली, आप रेजिलिएंट हो रहे हैं बाकी जो लोग हैं उनकी मदद करके, आपके अंदर रेजिलियंस बढ़ रही है, और उसका फायदा जो है वो हमने पहले ही बात की। अब इसके अंदर एक आपको याद होगा कि मैंने कहा था 3 चीजें हैं, तो 2 का जिक्र हो गया मोहतर। ज़हन में आपके 2 चीजें क्या हैं जो साथ साथ मैं आपका इम्तिहान भी ले रहा हूँ, जो रेजिलिएंट बनाती हैं? क्या 2 चीजें? Sir, the factors, your family, your own faith, is that what you're talking about? Oh, वो तो sorry. ठीक है, sir. Gratitude, sir. Gratitude. ग्रेटिट्यूड है। Yes. Empathy. Yes, बिल्कुल, you're Empathy. right. And third is we are discussing now. The third thing is probably most important. इसको अंग्रेजी में और साइकोलॉजी की जुबान में तो, और आप बहुत ये लफ्ज भी सुनते होंगे, माइंडफुलनेस कहा जाता है, जो कि इंसानों को रेजिलिएंट बनाता है। लेकिन मैं इसको बहुत आसान करके बताना चाहता हूँ सब लोगों को। माइंडफुलनेस असल में सिर्फ इतना है कि जो है उसके होने का एहसास और लुत्फ, जो है उसके होने का एहसास और लुत्फ, ये है माइंडफुलनेस। ये क्यों रेजिलिएंट बनाती है? क्योंकि नेचुरली ये कैफियत नहीं होती। नेचुरली इंसान की कैफियत है स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑफ व्हाट आई डू नॉट हैव। तो यानी इंसान नेचुरली जिस वक्त क्राइसिस में होता है, जैसे हम आजकल हैं, और उसके बाद बहुत वक्त होता है, या तो वो माजी के बारे में सोचता रहता है और माजी के बारे में सोच सोच के उसमें से क्रोध क्रेद के नेगेटिव चीजें निकाल रहा होता है, या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में सोचता रहता है। हेयर एंड नाउ में नहीं होता, इस वक्त में नहीं होता। तो हर लम्हे खो रहा होता है उस लम्हे की कैपेसिटी टू गिव यू लुत्फ, to give you a state of satisfaction and comfort. Mindfulness आपको ये सिखाती है कि जो कुछ मेरे पास इस वक्त है, इसका मेरा एहसास और इदराक ज्यादा हो जाए और लुत्फ भी ज्यादा हो जाए। और उसकी बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। आप लोग इंटरनेट पे जाएंगे तो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज से भरी हुई है इंटरनेट, लेकिन मैं उसका आसान सा आपको एक चीज बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आज आप अफ्तार के वक्त एक खजूर खा रहे हैं, तो एक तो ये है कि जैसे ही सायरन हो तो मैं उठाऊं और खा के और हो गया, और एक ये है कि आप उस खजूर को फोकस करके देर तक हबड़ दबड़ में नहीं, उसकी साख पर, उसके होने पर, उसकी अवेलेबिलिटी पर, आपके पास होने पर, आपकी दस्तरस में होने पर पहले फोकस करें, तेजी से नहीं।
स्लो डाउन. माइंडफुलनेस आस्क यू टू स्लो डाउन. तेजी से कुछ नहीं करना है. देन आफ्टर यू हैव एप्रिशिएटेड ये अजवा खजूर, नाउ पुट इट इन योर माउथ एंड एंजॉय इट्स टेस्ट. एकदम उसको निगल लेने की बात नहीं हो रही है भूख के मारे, नहीं. तो महसूस करना, उसका लुत्फ लेना, उसकी जो बाकी सारी चीजें हैं उनको भी उसी तरह से इंजॉय करना, उसके टेस्ट को, उसकी प्रेजेंस को इंजॉय करना. ये जो स्टेट है. फिर आपने ठंडे पानी का ग्लास लिया, आप ठंडे पानी के ग्लास को आपने पीना शुरू किया, तो उसके एक एक घूंट का आपने लुत्फ लिया. ये माइंडफुलनेस. आपने बैठ के अपने बॉडी का स्कैन किया कि मेरे पाँव में क्या कैफियतें हैं, मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कैफियतें हैं, मेरी आंखों में, मेरे सर में कैसी कैसी कैफियतें हैं. ये जो सारी चीजें हैं ये ऐसी हैं जो कि आपके अंदर माइंडफुलनेस का इदराक पैदा करती हैं, एहसास पैदा करती हैं जो है आपके पास. इसके होने से आप उस खौफ से बच जाते हैं जो नहीं है आपके पास और जो हो सकता है आपके साथ. तो इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो रहा, इस वक्त खुदा ना खास्ता ना इन्फेक्शन हो रही है, आपको ना अल्लाह रहम करे कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हुई है. हाँ, इर्द गिर्द खतरा जरूर मंडला रहा है, लेकिन माइंडफुलनेस आपको उस खतरे से डिस्कनेक्ट कर देती है. एंड दिस फीलिंग देन बिकम्स वेरी वेरी स्पेशल. अच्छा, तो ये तीन चीजें जनाब, माइंडफुलनेस, एम्पैथी एंड ग्रेटिट्यूड. ये कब काम करेंगे? ये तब काम करेंगे जनाब अगर आप आज ये तय करेंगे कि रिजिलियंट होने के लिए मुझे अब ब्लेम नहीं करना. कि जो ब्लेम करने की कैफियत होती है ना, इससे रेजिलियंस कम होती है. अब मैं थोड़ा सा जिक्र उन चीजों को करने लगा हूं जो कि आपकी रेजिलियंस को कम करती है. वो लोग जो हर वक्त किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं ना बाहर अपनी जात से, और वो बख्शते नहीं है, वो तो फिर अल्लाह मियां को भी ब्लेम करते चले जाते हैं, माशरे को भी ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, ब्लेम 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 ब्लेम. उनकी जिंदगी का जो प्रीडोमिनेंट इमोशन है वो ब्लेम होता है. तो ब्लेम जो है ना ये ब्लीड करता है आपके अंदर की रेजिलियंस को, कम करता है. कैरिड आउट ऑफ योर सिस्टम. ये मैंने ब्लेम नहीं करना यार, लेट मी सी हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टू अ सिचुएशन एंड प्रिवेंट दैट एंड फुल स्टॉप. तो ब्लेम की कैफियत कॉन्शियसली कोशिश करनी है, मैंने नहीं जाना. यकीन करें ये जो ब्लेम है ना ये मिस्ट जमा कर देता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने. ये फैसला करने जिस स्क्रीन के थ्रू इसने हकीकत को देखना था, जब ये ब्लेम की कैफियत आ जाती है ना, ये इसे हाईजैक कर लेती है, इसके सामने मिस्ट ले आती है. इन फैक्ट ऑल आर नेगेटिव इमोशंस जिनका मैंने जिक्र किया था, गिल्ट, शेम, वेंजियंस, ये तीनों के तीनों, और इनएबिलिटी टू फॉरगिव पीपल, ये सारे के सारे ऐसे इमोशंस हैं जो मिस्ट क्रिएट करते हैं और आपके अंदर जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको ब्लर कर देते हैं, उसको ब्लाइंड कर देते हैं, उसको नहीं काम करने देते. सो हम नहीं तय करना है नहीं यार, इनकी कोई जरूरत. मुझे वो जो वजू करके रखना है ना, उस वजू से क्या होगा कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा धुला धुलाया महसूस करेगा और वो एलिवेट हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करने लगेगा. दूसरी चीज जिससे बचना है वो है इनडिसाइसिवनेस. जब आप इनडिसाइसिव होंगे ना, टेस्ट कराऊं ना कराऊं, जाऊं ना जाऊं, चीजें लूं ना लूं, बेच दूं रख लूं, इनडिसाइड, निकाल दूं उनको नौकरी से या उनको तनख्वाह दे दूं. इनडिसाइसिवनेस, छोटी छोटी चीजों की इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर की रेजिलियंस को खा जाएगी, घुन की तरह चाटेगी और आपको ब्लीड करेगी. अब मैं उन चीजों का जिक्र कर रहा हूं जो आपकी रेजिलियंस को खराब कर रही हैं, जो कि उसको उसका बेड़ा गर्क कर रही. और तीसरी चीज जो कि आपको आपकी रेजिलियंस को कम करती है वो है डूइंग थिंग्स फॉर एक्सटर्नल रीजंस, एक्सटर्नल मोटिवेशंस, खुशनुदी के लिए, किसी की उसको खुश करने के लिए, उससे कोई इनाम हासिल करने के लिए, कोई तरक्की करने के लिए. ये कोई बुरी बातें नहीं है, लेकिन रेजिलियंस में ये नेगेटिवली आपको बहुत तंग करती है. जो रेजिलियंट इंसान होता है वो चीजें करता है हार्ट एंड सोल के साथ. वो पुकार सुनता है महबूब की अंदर से, जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि वो आपसे बातें करता है, वो आपको गाइड करता है. अगर आप धुला लें
अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धो दें, गिल्ट, शेम, वेंजेंस, और फिर एक फॉरगिवनेस की स्टेट में रहें, एम्पैथेटिक स्टेट में रहें, तो फिर वो आपसे बात करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जो कि फलाह का रास्ता होगा, और उसमें फलाह सिर्फ आपकी नहीं होगी, आपकी फैमिली की, मुआशरे की फलाह होगी। और ये जो टाइम है, चीजें आप इसलिए ना करें कि उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, आप इसलिए कीजिए कि उससे शेयरिंग हो जाएगी ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो शेयरिंग करने वाले जो लोग हैं वो तो रिजिलियंट हो जाएंगे। शेयर करने वाले, आजकल खाना शेयर करने वाले, कपड़े शेयर करने वाले, आमदन शेयर करने वाले, जरूरियात शेयर करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा रिजिलियंट हो जाएंगे। होल्ड करने वाले, इकट्ठे करने वाले, बचा के रखने वाले, दूसरों का हिस्सा भी अपने पास ही जमा रखने वाले कि कहीं नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं ये किसी को दूंगा कि मुझे जरूरत ना पड़ जाए, इनकी रेजिलियंस कम होगी। Decision is yours, ladies and gentlemen who are listening to this talk. You decide. You want to do things with heart and soul, with inner motivation, primarily to share, or are you trying to do things primarily out of insecurity, anxiety, and depression? Entirely up to you. हमने दो बुनियादी चीजों का जिक्र आपसे कर दिया जो आपकी resilience को बढ़ाएंगी. Faith and supportive relationships, meaningful relationships, trusting relationships, loving relationships. हमने आपसे जिक्र कर दिया उन 3 चीजों का जिनसे resilience आपकी बढ़ेगी. Gratitude, शुक्राने की कैफियत होना in spite of the fact that we are in difficult times. हमने आपसे ये भी जिक्र कर दिया कि empathy, जिससे कि empathy leading to some action of sharing, not just appreciating somebody's hunger and thirst, actually doing something about it. And then जो हमने mindfulness की आपसे बात की, to be here and now, और एहसास रखना उसका जो आपके पास है, और उस खौफ से दूर रहना जो आपके पास नहीं है, ये छिन जाएगा ये। और फिर हमने 3 ऐसी चीजों का आपसे जिक्र किया कि जिनसे निकलने से या जिनके होने से आपकी रेजिलियंस कम होगी, वो 3 से बढ़ेगी, ये 3 से कम होगी। पहला, ब्लेम करते रहना, दूसरा, इनडिसाइसिव होना, फैसले ना करना, और तीसरा, काम सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेटर्स की मोटिवेशन के लिए करना, हार्ट एंड सोल की बजाय उसके लिए जो आपका महबूब है उसके लिए करना। वो है जो कि आपको ज्यादा मोटिवेट कर देगा, इंटरनली मोटिवेटेड रखेगा इन डिफिकल्ट टाइम्स, और इंशाल्लाह आपको एक रेजिलिएंट इंसान बनाएगा। और रेजिलिएंट इंसान की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको शुरू में ही बता दी थी कि ये शख्स वो होता है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी की तरह रेजिलिएंट होता है, ये प्रोडक्टिव होता है, ये थ्राइव करता है, और ये क्राइसिस के बाद एक बड़ा इंसान बनकर बाउंस बैक करता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों के लिए भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और अपने मुल्क और सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। Thank you very much. Because, sir, I think you have actually summarized in a very effective way that change is something that makes better opportunities for the people. Exactly. And I think if we think of crisis in that way, I'm sure that people will look at the brighter picture of it as well. And with that, we have actually reached the very end of our session. Thank you, Dr. Muaddal, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. And I hope the listeners have also enjoyed the session as well. Thank you, sir. Thank you very much. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.